Hello guys, so this is going to be the lecture number 5, and in this lecture we are covering strings in Python. So let's start with creating a string. So let's take a variable var1, and inside var1 we are storing hello. So this is going to be the string var1. Var1 is a variable, and inside variable we are storing a string. Now multi-line string, let's create var2 and create some points like hello, what is your name? Now this is not valid. What's the reason why it's not valid? See, this is not a triple quotes, and for multi-line it should be triple quotes. So if I apply triple quotes, it will be a valid multi-line string. Now look at the common string methods. First of all, length. How to calculate the length of a string using len function. Like if I'm printing the length of variable 1, so apply len function, and inside len function, inside the parenthesis of len, write the variable name like var1. Okay, let's print it out. So see, the output is 5. 5 is going to be the value of var1, the upper and lower. Now let's create a variable 3 and store uh, academy. Okay. Now printing the upper and lower value. How? Print upper and the lower case of variable 3. So var3 dot upper, okay, comma var3 dot lower. Okay, see if there is any error, so we'll correct it out. See, academy is in the uppercase, all the letters are in the uppercase. Similarly, all the letters are in lowercase. See, strip and replace. Now we'll strip the trailing spaces and leading spaces. Let's create a variable 4 and let's hello world. Okay, we are providing these spaces. See, what I just want you to understand, these are the spaces. See, these are spaces, extra spaces, leading spaces, and these are trailing spaces. These are leading spaces. Let me again understand you. This is leading spaces, and this one are trailing spaces. So we want to remove them. How? Like printing the var4 and printing var4 dot strip. Now F10, F5. See, hello, there are leading and trailing spaces are there, if you see. But in the next one, there is no leading and no trailing spaces that are removed. This is what I want you to show. Next is replace. Okay, you can replace your characters with something like printing var4 dot replace. Now replace hello with yes, and let's check it out if it is working or not. Okay, there is an error. Let me check. Okay, the parenthesis is not closed. See, yes, it is replaced with hello with the leading and trailing spaces is replaced with the leading and trailing spaces. Yes, so yes, it's working. Now look at the concatenation. Concatenation means adding of two strings. How the two strings are going to sum up. So let's take variable 1 and variable 3, and we are just going to add them. Printing variable 1. Okay, variable 1. So we need to provide the space between characters. So we'll provide space and then put it variable 3. Let's see the output. See, hello academy. Okay, hello academy. The next one is the repetition of characters. Like if I want to write your names 50 times, what I want to do 50 times. So print, but my name is Bhavya and I just want it to print 50 times. So what I'm going to by star operator, like I'll write 50. So it will print my name 50 times. See, it will print my name 50 times. Okay, there's not space because I don't have providing space.
file provide space, it will provide space after every letter, not letter, every word after my name, there will be space. So this is what we need to cover in the basics. We'll move forward and do some more practice. Let's discuss the strings in Python. So indexing in Python. So string indexing allows us to access individual character in a string. So first of all, string के अंदर जो भी हम characters use कर रहे होते हैं, string is a collection of characters. और अगर हम उस character को access करना चाहें तब हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, यानी कि हर एक कैरेक्टर को हम चाहें कि हम उसकी एक्सेसिबिलिटी हो हमारे पास, तब हम यूज़ करेंगे इंडेक्सिंग. पाइथन ट्रेड्स स्ट्रिंग्स लाइक लिस्ट. पाइथन जो है स्ट्रिंग को लिस्ट की तरह ट्रीट करता है, तो उसकी हम इंडेक्सिंग करेंगे. सो इंडेक्सिंग होती है दो टाइप की, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग. जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे तब हम हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर देखो मैंने गीक्स फॉर गीक्स लिखा हुआ है, इस प्लेटफॉर्म. तो गीक्स फॉर गीक्स का प्लेटफॉर्म जो है उसका मैंने स्ट्रिंग में कंसिडर किया हुआ है और उसकी मैंने इंडेक्सिंग की, तो इसको ये लिस्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ. और यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स दिया हुआ है. नेक्स्ट जी को 0, ई को 1, ई को 2, फिर के को 3, एस को 4, देन वाइट स्पेस. तो वाइट स्पेस को भी इन्होंने एक इंडेक्स दिया, दैट इज 5. देन 4 के बाद एक और वाइट स्पेस है जिसको इसने इंडेक्स दिया 9. ये कैसे दिया इंडेक्सिंग? 0 से अप टू दी लेंथ ऑफ दी द स्ट्रिंग. और नेगेटिव में क्या होगा? पीछे से शुरू होगा -1 से. तो वही चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तब हमें हमेशा 0 से शुरू करनी है, और अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो लास्ट से शुरू होगी और -1 से शुरू होगी. दिस इज द डिफरेंस. एंड नाउ लेट्स डिस्कस द स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स इन पाइथन. स्ट्रिंग को कैसे हम स्लाइस करेंगे, यानी कि टुकड़ों में कैसे तोड़ देंगे, और उसको तोड़ने के बाद हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे. लाइक इसमें यहाँ पर हमें एक रूल फॉलो करते हैं, दैट इज 3S रूल. व्हाट इज 3S रूल? 3S रूल बेसिकली स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप. स्टार्ट मतलब कहाँ से उसकी इंडेक्सिंग शुरू होगी, स्टॉप यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा, एंड स्टेप, स्टेप यानी कि कितने स्टेप उसे आगे मूव करना है. जैसे एक सीढ़ी है, स्टेयर है, स्टेयर चढ़ते हैं तो हमें कितने स्टेप मूव फॉरवर्ड करना है, 1 स्टेप 2 स्टेप, वहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे. तो यहाँ पर भी हम डिक्लेयर करेंगे. तो दीज आर द 3S रूल, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप. स्टार्ट में क्या होगा? वी प्रोवाइड द स्टार्टिंग इंडेक्स. स्टार्टिंग इंडेक्स प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज द स्टार्ट वन. एंड में हम कहाँ पर एंड करना है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन सबस्ट्रिंग. तो इसका मतलब क्या वो हम समझ लेंगे, यानी कि हमें जब 5 दिया है, लाइक प्रिंट एस 1 5 2, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, 4 तक इंक्लूड होगा. वो हम देखेंगे कैसे होगा. इट्स एन ऑप्शनल आर्गुमेंट दैट रिमाइंस द incremental between each index. Let's discuss it out over here. Okay, let's declare a variable var, and इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं it is quite funny. ठीक है, अब मेरे को इंडेक्सिंग करनी है, इनकी स्लाइसिंग करनी है. स्लाइसिंग कैसे होगी? वैर, और वैर का मेरे को ये 0 2 एंड 1. ठीक है, तो क्या अब क्या लगता है क्या आना चाहिए? ठीक है, क्या आना चाहिए इसमें अगर मैं ये प्रिंट कर देता हूँ? लेट्स प्रिंट इट आउट. से देखो आया, इट आया. इट कैसे आया? मैंने इट को कैसे एक्सेस किया? हाउ आई एक्सेस द इट? तो देखो यहाँ पे जो मैंने 0 लिखा, ये 0, ये है स्टार्टिंग ऑफ द इंडेक्स, दैट इज स्टार्ट. सो स्टार्टिंग में क्या है? आई है, आई यानी कि 0. अब यहाँ पे है 2, ये क्या है? स्टॉप. कॉलन के बाद जो भी स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप है वो कॉलन से सेपरेट होगा. तो 2 क्या है? स्टॉप है. स्टॉप होगा, लेकिन स्टॉप से एक पहले, यानी कि 0 1 2, 2 से पहले दूंगा वहाँ तक एक्सेसिबिलिटी होगी, यानी कि 1 तक. एंड स्टॉप में 1, यानी कि एक एक स्टेप आपने मूव करना है, एक स्टेप आगे स्टेयर की तरह मूव करना है. सो आ गया इट. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट करा देते हैं. लेट्स सपोज वैर का 2 से शुरू कर लेते हैं, 4 तक जाएंगे एंड एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. ठीक है, और हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें इसकी स्लाइसिंग करनी होगी. ठीक है, लेट्स डू इट. देखो आउटपुट में आया आई स्पेस आई. आउटपुट में क्या आया? स्पेस आई. स्पेस आई क्यों आया? देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? 2 से. 2 क्या है? देखो 0 पे आई है, टी पे 1 है. ठीक है, और स्पेस कहाँ पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है. स्पेस 2 पे आ रहा है, तो हमने 2 को इंक्लूड किया है. 2 को इंक्लूड करके स्टॉप, स्टॉप 4 पे है. 4 यानी कि 1 माइनस कर दिया 2 से, यानी कि 3 तक, यानी कि 3 को इंक्लूड करना है. अब ये हो गया 2, अब ये हो गया 3, आई 3 आ गया, तो हमें 3 तक ही इंक्लूड करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है. जो स्टॉप वैल्यू होगी उस इंडेक्स को इंक्लूड ना करते हुए उसे एक पहले का इंक्लूड करना है.
एंड देन स्टेप कितना, एक एक मूव आगे करें। एक बार और प्रिंट करा के देख लेते हैं कुछ और, लाइक 4 से स्टार्ट करते हैं, 8 तक जाते हैं और 2 की इंडेक्सिंग है क्योंकि 2 से आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी के देखते क्या आउटपुट आता है। देखो आउटपुट में क्या आया, लेट मी सी द आउटपुट, इट इज स्मॉल एस एंड कैपिटल यू। देखो कैसे आया स्मॉल एस एंड कैपिटल यू। देखो 4 से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू 4 है, सो 0 1 2 3 4, 4 क्या है यहाँ पे 4 आया है। काउंटिंग करो, 0 पे आई, टी पे 1, स्पेस पे 2, आई पे 3 एंड स्मॉल एस पे 4। तो 4 को तो हमें इंक्लूड करना है क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू है। 8 हमें 8 को इंक्लूड नहीं करना, 7 तक इंक्लूड करना है। सो यहाँ पे आ गया था 4 देन 5 देन 6। ओके वेट, इसने एस को इंक्लूड किया। ओके हमें 1 से मूव नहीं करना, हमें 2 से मूव करना। तो स्टार्टिंग का क्या था, एस था, तो हमें एक स्टेप मूव किया होता। अगर हमने एक स्टेप दिया होता तो हम स्पेस को इंक्लूड करते। बट इसने बोला है कि आपने 1 से मूव नहीं करना, 2 स्टेयर छोड़ के मूव करना है। तो हम 1 को छोड़ देंगे और क्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि 2 से आगे बढ़ो, 1 से आगे नहीं बढ़ना। 1 से आगे बढ़ते तो आप स्पेस को इंक्लूड कर लेते, बट अगर हम 2 से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें स्पेस को स्किप कर देंगे और सीधा कैपिटल क्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, और हमें यू को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन आपका स्टेप 1 होता है, लेकिन स्टेप क्या है, 2 है। अगर स्टेप 2 है तो हमें इसे छोड़ना पड़ेगा और आई को तो हम इंक्लूड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आई हमारा 8 से 8 है, आई हमारा 8 है, काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आई 8 पे आ रहा है, स्मॉल आई 8 पे आ रहा है। और हमेशा याद रखना कि 8 इंक्लूड नहीं होगा, ये स्टॉप वैल्यू है, कभी इंक्लूड नहीं होगी। इसे एक कम इंक्लूड होगी, यानी कि 7 तक इंक्लूड होगा, यानी कि यू तक इंक्लूड हो जाता, लेकिन यू आ ही नहीं रहा हमारी स्लाइसिंग में, क्योंकि स्लाइसिंग क्या कह रही है, 2 से आगे बढ़ो। ठीक है, समझ आया। एक और प्रिंट करा के देख लेते हैं, where 5 4 4 sorry okay 4 8 and like let's say 3। okay अब देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा, लेट्स सी यस। देखो आंसर आया एस यू। एस यू कैसे आया, मैंने कहा स्टार्ट तो 4 से करो, स्टॉप 8 पे करो। 8 पे स्टॉप करने का मतलब है कि आपने 7 तक की स्लाइसिंग को इंक्लूड करना है। ठीक है, क्या है कि आप 1 स्टेयर जंप मत लो, 2 स्टेयर जंप मत लो, 3 स्टेयर जंप लो। ठीक है, तो 4 से शुरू होगा, दैट इज एस। फिर हम, अगर इसने बोला कि 3 स्टेयर जंप लेना, तो हम स्पेस को स्किप करेंगे, देन कैपिटल क्यू को भी स्किप करेंगे। तो हमें तीसरे पे आना है, तीसरे पे जंप किया तो यू आ गया। देखो शुरू, एस पे हम थे 4 का जो कि इंडेक्सिंग था, फिर इसने बोला 3 का जंप लेना है, तो हमने स्पेस को छोड़ दिया, फिर हमने क्यू को भी छोड़ दिया, 2 हो गए। तीसरे पे जंप करेंगे तो सीधा यू आ जाएगा, और यहाँ तक ही हमें एक्सेस करना था। तो ये तो था पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और अब हम डिस्कस करें नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो। सो मैं कुछ चीज़ें प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे आउटपुट बताना उसका क्या क्या और कैसे क्यों आया। -2 -8 एंड -1। इसमें देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होगी, -2 है तो स्टार्ट -2 से होगा। -2 कहाँ पे आएगा, ये ध्यान से सुनना, y -1 है, n -2 है, तो n से शुरू होगा क्योंकि मैंने स्टार्ट -2 दिया, स्टॉप -8 दिया है। -8 को इंक्लूड नहीं करना है, जहाँ पर स्टॉपों से एक कम लेना है, यानी कि -7 तक इंक्लूड करके चलना है। अब स्टेप वैल्यू है -1। स्टेप वैल्यू -1 का मतलब क्या है, स्टेप वैल्यू -1 का मतलब ये है कि हम एक एक करके पीछे जा रहे हैं, पीछे की तरफ से ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो -2 में -1 ऐड करना, -3 हुआ, फिर -1 करना, -2 हुआ, तो ये कब तक चलेगा, -8 तक। लेकिन -8 इंक्लूड नहीं करना, एक कम तक चलेगा, -7 तक चलेगा। आउटपुट देखो इसका क्या आएगा, सबसे नीचे वाला देखो, NNU कैपिटल एफ दिखा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है NNU कैपिटल एफ, और आप चेक करना कैसे आया ये, n -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, -7 तक चला, 8 को इसने इंक्लूड नहीं किया, वरना तो वो भी आंसर पे आ जाता है, पर वो आंसर में नहीं आया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखो, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, -2 -10 एंड -2। अब ये देखना उसका आउटपुट कैसे आएगा। सी इसका जो भी आउटपुट आया XYZ NUT आया, इसका NUT कैसे आएगी ये भी सब ये देखो, -2 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स स्मॉल n से शुरू हो रहा है। उसके बाद बोला है -10, -10 का मतलब क्या,
वो टी में -10 का मतलब है कि -9 तक चलेगा और दो की जंपिंग रहेगी, यानी कि एक छोड़ के एक स्किपिंग रहेगी। तो सबसे पहले एन आएगा, नहीं एन नहीं आएगा, हाँ एन आएगा क्योंकि -2 से शुरू की, -2 के बाद एन के बाद यू आ जाएगा, देन स्पेस आ जाएगा और ये आई थिंक टी आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि -2 3 4 5 6 7 8 9 आई तक। और इसमें कैसे होगी, एक एक ही छोड़ दो। जो मैंने हाईलाइट किया उसमें आप देखो सबसे लास्ट में एन है, एन के बाद यू आएगा, एन को छोड़ देगा एक, क्यों, क्योंकि एक की स्किपिंग नहीं हो रही, दो की स्किपिंग हो रही है। उसके बाद देखो एन के बाद यू, फिर अंडर स्पेस आ जाएगा, देन टी आएगा। अब देखो आउटपुट चेक करो वही है क्या नहीं है। आउटपुट देखो एन यू टी है, एन यू वाइट स्पेस टी, वाइट स्पेस क्यों है, क्योंकि वो भी इंक्लूडेड है। तो जब भी स्लाइसिंग करेंगे वाइट स्पेस भी आएगा हमारे आउटपुट के। नाउ टेक एन अनदर एग्जांपल दैट इज प्रिंट where and now I don't provide start stop, I just provide step value. See, colon skip start stop and put step value, like I provide -1 step value. Okay, let's see the output. See, the output is going to be this one. This is the reverse string. See, जब मैंने -1 किया step value तो ये मेरे को reverse string ला के देगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि क्या होगा अगर मैं ये कर दूँ var of colon -2. Okay, see, no, see the output. This is also the reverse string, but in this case what happens, दो की जंपिंग हुई। दो की जंपिंग कैसे हुई, क्योंकि मैंने स्टेप वैल्यू -2 दिया, -2 देने पे ये पीछे की तरफ आने लग गया दो की जंपिंग के साथ। होप यू गेट माई पॉइंट। सो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, बहुत सारे स्लाइसिंग के एग्जांपल्स देंगे। तो डोंट वरी कि अगर आपको कुछ चीज़ें अभी समझ भी नहीं आई हैं, सो डोंट वरी, बहुत सारे